good evening. Welcome to you all. So the next slide goes like this. Important things to remember. The first thing is this one, which I just now told you. Plan length is always parallel to XY line. And second thing is it is always equal to top view. तो अगर क्वेश्चन में दिया है अगर कि टॉप व्यू measures 60 mm, okay, just an example I am giving. In the question it is written that a top view of a line measures 60 mm, 60. So the plan length will also measure 60 mm. So can you draw the plan length now? If I give you the value? Yes. Yes, correct, because we know that plan length is always parallel to XY length. So if I know the value of 60 mm, I will just draw one straight line parallel to x-axis worth 60 mm. That's it. That's why I told plan length and elevation length are very easy to make. They just require the dimension. That's it. They don't require angle. On the similar lines, second point I have elevation length EL, which we just now saw, which will be parallel to XY axis again, and this will be also equal to front view. So what I have written here after this, the notations we have seen in the previous slide, that plan length is given by AB1 and true top view is given by AB. So that's why notation, in notation part if I write, I will write AB1 is equal to AB. Similarly, if I write like this, this is the front view, sorry, this is the elevation length A dash B2 dash, and this is A dash B dash is the front view. So I am just converting the statements into the nomenclature which we have seen in the previous slide. Third point, B1 dash and B will be on same horizontal line. So I will not ask you to remember this, but I will show you with a diagram. Okay, and the diagram goes like this. It will be very simple to understand. Let us say this is A, and if you also write it like this, it will be very easy to remember. This five points, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, this is A. If let us say I will write A, I will write A dash. Then if I write B, I will write B dash. If I will write B1, I will write B1 dash. And if I write B2, I will write B2 dash. So can you observe the pattern how I have written? If I am writing A, correspondingly I am writing A dash. If I am writing B, I am writing B dash. If I am writing B1, I am writing B1 dash. If I am writing B2, I am writing B2 dash. What does it mean? What does you have to remember from here? You have to remember like this. You have to remember like this, that this A and A dash will always be on same vertical line. That's why I have written it one below the other. Okay, similarly B and B dash will be on the same vertical line, B1 and B1 dash will be on same vertical line, and B2 and B2 dash will be also on same vertical line. What does I mean from this? Okay, let me draw a diagram here. Okay, so let us say this is XY line, and I'm just making a rough diagram again, A dash, and let us say this is B dash, A dash, B dash. So what I am telling is, on the projector of A dash, जहां पर भी A dash होगा उसी लाइन पे कहीं पर भी, ऊपर नीचे कहीं पर भी, there will be A itself. A और A dash हमेशा एक ही वर्टिकल लाइन पे होगा. अब वो ऊपर होगा या नीचे होगा, that depends on the question given. Similarly, ये अगर मेरा B dash है राइट हैंड साइड में, तो मेरा B कहाँ आएगा? If I make a line here, if I make a projection line here, so B will be anywhere on this line only, और कहीं नहीं जाएगा B. So let us say B is somewhere here, and just I will join this AB, which will give me the top view. Understanding or logic that A and A dash, बिना डैश वाला और डैश वाला हमेशा साथ में रहेंगे, ये याद रहेगा. यस सर, डैश वाला फ्रंट व्यू है. यस, डैश वाला फ्रंट व्यू होता है. सो इफ यू आर डिनोटिंग बाय डैश, A dash, B dash, C dash, etc., that will be in HP, or you can also tell front view. And without dash you are telling you can name it as top view. Understood this part? और ये एग्जाम में भी अगर आप ये लिख लोगे ना कहीं पर साइड में, ये वाला पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, A dash, B dash, B1, B1 dash, B2 और B2 dash, आपका सम काफी सिंपल हो जाएगा, काफी सिंपल हो जाएगा. When we will start with the problem, we will see this two, B and B2, this B and B2 will be on same horizontal line, इसलिए मैं ये ऐसा horizontal बना रहा हूँ, B and B2, and second will be this one, B dash and B1 dash. ये दो पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड. तो अगर ये वाला डायग्राम आपने बना लिया एग्जाम में साइड में कहीं पर, तो आपका सम बहुत इजी हो जाएगा.
नाउ तो मैंने अभी हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल का तो समझा दिया, हॉरिजॉन्टल का बताता हूँ। देखो हॉरिजॉन्टल में मैंने क्या बताया, फर्स्ट वाला पार्ट बी और बी टू हमेशा सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा, करेक्ट। बी और बी टू हमेशा सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा। तो अगर मुझे बी का पोजीशन मालूम है, राइट साइड में देखो आप डायग्राम पे, अगर मुझे बी का पोजीशन मालूम है तो मैं एक ये लाइन ड्रॉ करूंगा, मुझे मालूम है कि मेरा बी टू कहाँ रहने वाला है, इसी लाइन पे कहीं तो रहेगा। गेटिंग मी, समझ में आ रहा है लॉजिक। अब वो बी टू कहाँ हो सकता है, बी टू यहाँ हो सकता है, बी टू यहाँ हो सकता है, बट इट इज फिक्स्ड दैट इट विल बी ऑन दिस लाइन ओनली। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यस सर। सिमिलरली ये तो मेरा फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला क्या है मेरा लॉजिक, सेकंड लॉजिक है बी डैश एंड बी वन डैश, बी डैश एंड बी वन डैश विल बी ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर देखो ऊपर मैंने बी डैश बनाया था, तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही मेरा क्या आने वाला है, बी वन डैश आने वाला है। तो लेट अस से वो बी वन डैश यहाँ पर है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द स्क्रीन केयरफुली, if I join this a dash b1 dash and if I join this a b2, I have completed my problem. a b2 मैंने बना लिया, मतलब मैंने ट्रू लेंथ इन द टॉप व्यू बना दिया, और a dash b1 dash बना दिया, मतलब मैंने ट्रू लेंथ इन द फ्रंट व्यू बना दिया। तो इतना ही तो चाहिए रहता है। और ये भी मैंने आप लोग को बता दिया कि प्लान लेंथ एंड एलिवेशन लेंथ आर पैरेलल। तो यहाँ से एक प्लान बना लूंगा पैरेलल एलिवेशन लेंथ, और यहाँ से एक लाइन बना लूंगा पैरेलल प्लान लेंथ। दैट कंप्लीट्स द प्रॉब्लम। 6 लाइन ही तो बनानी रहती है। कुछ डाउट है किसी को, प्लीज आस्क। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड व्हिच आई वांट टू कन्वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना बाद में। सर जो लाइंस है, लाइंस का शेड डिफरेंट रहेगा कि सबका एक ही शेड रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नॉर्मली Continuity. प्रोजेक्शन लाइंस है, प्रोजेक्शन लाइंस जो हम लोग प्रोजेक्शन के लिए बनाएंगे इस पे, जैसा मैंने ये वाली बनाया। देखो ये जो मैंने आप लोगों को क्या बोला अभी कि मेरे पास बी पॉइंट है, ठीक है, मेरे पास बी पॉइंट है, और इसी कहीं पर लाइन पे क्या रहने वाला है, बी टू। तो ये जो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन बनाऊंगा दैट विल बी वेरी लाइट, एकदम लाइट लाइन। मीडियम लाइन क्या रहेगी तुम्हारी, ट्रू लेंथ और प्लान लेंथ तुम्हारी मीडियम डार्कनेस रहेगी, और सबसे डार्क जो रहेगी, डार्क मैक्सिमम, दैट विल बी ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ड्रॉ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द लाइन। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू डार्क दिखना चाहिए, बाकी सब लाइंस मीडियम दिखना चाहिए, और जो प्रोजेक्शन लाइंस है वो एकदम लाइट दिखना चाहिए। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। So this points which I have written from point number 3 to point number 7, that is I have explained through this figure. Just simply what you write, a dash, b dash, b1 dash, b1 dash, b2 dash, and just join it by the vertical lines which will indicate that that will be on the same vertical lines. And just to first पहली वाली लाइन में फर्स्ट और लास्ट को कनेक्ट करो, दूसरी वाली लाइन में सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करो, that will be on the same horizontal line. Again I repeat, if you draw this a dash, b dash, b1 dash, b2 dash in your diagram, in your answer sheet, it will be very easy solution to you. Okay, next line. Again important thing, क्वेश्चन में आपको बहुत जगह ऐसा दिखेगा, कभी पढ़े हो ऐसा क्वेश्चन आपने? शायद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स भी कर लिया है ना। the pentagon prism lies on HP, above HP. Then we are starting with the 8th point, that is above HP. क्वेश्चन में आपको कभी भी दिख गया above HP, okay, तो above HP मतलब it is above horizontal plane, and in the solution you have to make it above XY line. Most important thing, क्वेश्चन में बोल दिया अगर above HP, let us say क्वेश्चन में ऐसा दिया है point A is 10 mm above HP, तो above HP मतलब you have to make it above XY line, 10 mm above XY line, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज बिलो HP, अगर above HP above XY line है तो बिलो HP क्या होगा, बिलो XY line. देन इन फ्रंट ऑफ VP, ये उल्टा चीज है, देखो बोल रहा है इन फ्रंट, बट बनाना कहाँ पर है, क्या हुआ, XY एक्सिस बना के समझाओ ना। ओके नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट। और क्वेश्चन में दिया है पॉइंट A इज 10 mm, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉइंट A इज लेट अस से 20 mm अबाव HP, क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा पॉइंट A इज 20 mm अबाव HP, तो आपको क्या करना है, XY लाइन से ऊपर आना है 20 mm, लेट अस से मैंने ये मार्क किया 20 mm, और वहां पर आपको ये पॉइंट लिख देना है A। अब यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया, कैन समवन आइडेंटिफाई वन मिस्टेक, हाँ करेक्ट, यहाँ पर आएगा A डैश। अच्छा अब आप लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला डैश ही आएगा, A क्यों नहीं आएगा, तो बेटा यहाँ पर देखो क्या बोला है, कभी भी आपको दिख रहा है HP, इन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको HP दिख रहा है, HP मतलब डैश, ये याद रखो, HP मतलब डैश आएगा, और VP बोल दिया मतलब विदाउट डैश, ठीक है।
तो अगर मैं बोलता हूँ इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब मेरा नोटेशन देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ लेट अस से ए इज 20 mm अबव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सपोज पूरा क्वेश्चन ऐसा दिया है, पॉइंट ए लाइज 20 mm अबव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ए 20 mm अबव एचपी बोल दिया, एचपी बोल दिया मतलब मेरा डैश आना चाहिए, ए डैश कुछ भी नाम हो जाए। अगर लेट अस से लाइन का नाम है एम एंड, तो मैं लिखूंगा एम डैश, ठीक है। एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट मतलब मैंने क्या बताया अभी आप लोग को, इन फ्रंट मतलब क्या होता है, बिलो एक्स वाई लाइन। तो मैं क्या करूंगा, 30 mm बिलो एक्स वाई लाइन मेजर करूंगा, लेट अस से दिस इज 30 mm एंड आई विल मार्क दिस पॉइंट एज ए ओनली बिकॉज आई एम मार्किंग इट इन वीपी। तो एचपी, अगर क्वेश्चन में तुमको एचपी वर्ड दिख रहा है तो समझ जाना नोटेशंस विथ डैश आएंगे, मतलब फ्रंट व्यू वाला आएगा। और अगर आपको वीपी दिख रहा है मतलब नोटेशंस क्या आएंगे, विदाउट डैश। गेटिंग इट? Yes, sir. एंड ऑन द सिमिलर लाइंस वी हैव Sir, in बिहाइंड front of वीपी। VP हाँ नहीं sir, हाँ. इन क्या नहीं फ्रंट ऑफ समझे? वीपी बोलेंगे तो मतलब नीचे आएगा, मतलब यस, हाँ ऐसा वही रहता मैं बताया ना, यहाँ पर उल्टा है, देखो यहाँ पर ये उल्टा है, ये याद रखो। एक्स के लिए बराबर है, 90 एच, rotate होता है। हाँ एचपी के लिए बराबर है। एचपी के लिए क्या बोला है, अबव एचपी मतलब अबव एक्स वाई लाइन ही बनेगा, बिलो मतलब बिलो बनेगा। बट वीपी के लिए उल्टा हो जाता है। वीपी के लिए क्या करना है आपको, अगर इन फ्रंट बोला, सामने बोला तो आप नीचे बनाओगे उल्टा, और बिहाइंड बोला है, पीछे बोला है तो आप ऊपर बनाओगे। दैट्स इट। तो ये याद रखो, आपको वीपी के लिए उल्टा करना है, वीपी के लिए आपको उल्टा करना है, एचपी के लिए नॉर्मल, अबव बोला है तो अबव, बिलो बोला है तो बिलो। रिकमेंड दैट यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। ओके, सो एज आई ऑलवेज डू, डोंट फॉरगेट दिस पार्ट, यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस टू मी। हाँ सर, सही है। अरे एक जन से Yes, प्रॉमिस sir. नहीं चाहिए यार, पूरी क्लास प्रॉमिस करना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके। Yes. So, Yes, sir. so one more thing I have to share with you is this video audio clip. ये बात अपने भेजे में घुसा कर ताला मार लो। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दिस टू, बाकी सब तो ऐसी मतलब नॉर्मल याद रहेगी, इसको आपको याद रखना है। दिस टू, प्लान लेंथ, एलिवेशन लेंथ विल ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्स वाई लाइन and plan length will be equal to top view, elevation length will be equal to front view. In the notation part it will be AB1 equal to AB, A dash B2 dash is equal to A dash B dash. So all of you have taken the screenshot of this slide. It is recommended that you take this, it's very important. Yes, sir. Okay, so these are the notations which we are going to use, or which is normally used in the engineering drawing, engineering graphics you can say. So should we start with the problem side? Yes, sir.